Hello students, let us learn how to solve class 11 binomial theorem sum problems. Here is one question for your learning. The first question is find the seventh term in the expansion of 4x by 5 plus 5 by 2x whole to the power 8. Here for solution, take this first part and the second part as a plus b and this exponent as n. Now you should learn a plus b to the power n is equal to, in general form, the any term for this expansion. Suppose r is equal to 6 and T7 should be reckoned. To find the seventh term, you should write T 6 plus 1. 6 plus 1. The general terms can be written as NCR, x to the power n minus r, and here you should write a to the power. First is a, n minus r, NCR, and then b to the power r. This is the seventh term. This is the seventh term in the expansion like this. R is 6 plus 1 for 7. Now put these values to get this T7 is equal to, what is n? 8. This is your n. So right here 8 C, what is r? R is 6. 6 here. A is 4x by 5 to the power n minus r. 8 minus 6. A to the power n minus r. And what is b here? 5 divided by 2x to the power 6. Check again. Seventh term you have to find. It is 6 plus 1. R is 6. N is 8. NCR, a to the power n minus r, b to the power r. Here see this, and this should be same. Now here you can find NCR. There is a formula NCR, factorial n divided by factorial r into factorial n minus r. So here factorial 8, n is 8 divided by factorial 6 multiplied by 8 minus 6. So this will become factorial. You can write factorial 8, 8 into 7 into factorial 6. Again, because 6 will continue up to 1. And here your factorial 6, the benefit will be these two will be cancelled. And here it is factorial 2. So this will be cancelled. 2's factorial is 2. So you can write 8 into 7 divided by 2 into 1. 2 4 ja, 7 4 ja, 28. 7 चौक 28. The whole value of this is 20 for, this is your rough work. T7 is equal to this 28. 28 for this. Then 4, 8 minus 2. Here you write 4x by 5 to the power 2 and then 5 by 2x to the power 6. Now you have to solve this. Try something calculation.
This is 4, 16x square by 25. 5 square 25. Here, this is how many times? 5 into 5 into 5 into 5 into 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 times. 6 times. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Divided by again 2 6 times and x to the power 6. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. Is it 1, 2, 3, 4, 5, 6? And then x to the power 6. X to the power 6. Now you can cancel something. This 25, 25. Okay? This 4, 2 to the 4, 4 to the 6, 4 to the 8, 8 to the 16. 2, 4, 6, 8, 8 दूनी 16. ये कट जाएगा, ये कट जाएगा. ओके, फिर देखो 2 से ये कट जाएगा, 14 दूनी 28. फिर 2 से ये कट जाएगा, 7 आ रहा है सिर्फ. नीचे का सब कैंसिल हो गया. और देखो एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा तो बचेगा क्या? 4, 4. 6 है ना, 6 ऊपर जाएगा, 2 है, यहाँ 6 है तो 4 बचा. अब आपके पास जो बच रहा है वो सिर्फ क्या क्या बच रहा है उसको एक बार लिख के फिर मल्टीप्लाई करेंगे. 7 इंटू 5 5 जा 25 एंड अगेन 25 इज इक्वल टू 625 डिवाइडेड बाई x to the power 4. Okay, 7 and then 625. So multiply this 625 by 7. 7 पचे 35, 5 3 आएगा, 7 दूनी 14, 15 16 17 और 7 छक 42 और 1 43. ठीक है, 5 7 35, 5 3 7 दूनी 14, 15 16 17 7 1 7 छक 42 1 43. तो इसका आंसर क्या आया? 4 3 7 5 डिवाइडेड बाई x to the power 4 और यही आंसर है. 7th टर्म योर आंसर इज 4375 to the power 4. Okay, students, let us see the next second number question. You have to expand a binomial 2x plus 3x plus 2y raised to the power 4. इसको एक्सपेंड करना है. तो कैसे आप कर सकते हो? सपोज इसको आप a ले लो, इसको b ले लो और इसका पावर जो n है इस तरह से है. तो इसका एक्सपेंशन के लिए जो फॉर्मूला है उसको याद कर लो. कितना आसान है. a प्लस b टू द पावर n का एक्सपेंशन होगा nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a to the power n minus 1 b to the power 1 plus nc2 a to the power n minus 2 b to the power 2 plus nc3 a to the power n minus 3 b to the power 1. ये देखो पावर n घटते जा रहा है और b का बढ़ 1 2 यहाँ हो जाएगा 3 2 है b टू द पावर 3 और फिर प्लस nc4 4 तक ही जाना है क्योंकि n का वैल्यू 4 है. तो यहाँ हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा और सिर्फ b पर पावर 4 बचेगा क्योंकि n माइनस n 4 माइनस 1 0 हो जाएगा. और यहाँ पर देखोगे कि b का पावर जो है तो 0 हो जा रहा है. अब इसमें एक चीज ध्यान से सीखो, ये जो कॉफिशिएंट स्टार्टिंग का होगा और यहाँ 4 and 4 यदि होगा तो ये दोनों 1 1 ही होगा. ये समझना सीख लो. इसके बाद वाला जो है सो nc1 और इधर से देखो nc3
यही है, इधर से 4 के बाद 3 है, तो ये दोनों का वैल्यू जो पावर है वही होगा, 4 होगा तो 4 होगा। अब सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है इसको और सब वैल्यू इसके मुताबिक लगा देना है। तो आप लिखोगे तो ये 1 होगा, तो पहले को क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर, ये कॉफिशिएंट्स का वैल्यू है, ये कॉफिशिएंट्स का वैल्यू है, तो 1 है तो कुछ नहीं रहेगा, a के जगह पर क्या है 3x, इसका पावर क्या होगा 4 होगा, ऐसा होगा 4 प्लस कॉफिशिएंट क्या होगा 4 और a का पावर जो 3x दिया हुआ है, a का वैल्यू 3x है, इसका पावर देखो तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 है, ये 1 ये वाला टर्म है, n माइनस 1 करेंगे तो 4 है ना, तो यहाँ 3 लिखेंगे और b के जगह पर क्या है 2y, ये समझ में आया, पावर 1 है तो यही रह जाएगा, प्लस अब देखो ये टर्म निकाल लो, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, तो ये कितना आ जा रहा है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जैसे ही आया फैक्टोरियल 4 2 C2 C1 C2, तो फैक्टोरियल 4 कैसे लिखा जाता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 2 के लिए 2 आएगा और फिर 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, तो ये देखो दोनों कट गया, 2 2 4, इसका कोफिशिएंट का वैल्यू क्या आया 6 है, तो यहाँ कोफिशिएंट 6 है, तो 6 को लिखेंगे, फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म लिखने जा रहे हैं, तो कोफिशिएंट 6 हो गया, a का पावर 2 तो 3x टू द पावर 2 और b 2y टू द पावर 2, ये हो गया। अब यहाँ देखो ये 4 है, तो यहाँ 4 कोफिशिएंट होगा और a के जगह पर लिखेंगे 3x टू द पावर 4 माइनस 3, 1 आ जाएगा, 1 यहाँ 2 से 1 हो गया और y पर पावर 3 होगा, तो y का वैल्यू है 2y टू द पावर 3, 4 3 2, ये घटते जा रहा है और इधर बढ़ते जा रहा है 1 2 3, ये हो गया। अब लास्ट वाला टर्म है NC 1 होगा, कोफिशिएंट 1 होगा और b का पावर क्या होगा 4, तो यहाँ लिखेंगे 2y टू द पावर 4, ये समझ में आया। फर्स्ट का पावर 3x का 4 प्लस कोफिशिएंट इसका 4 था, a का पावर 4 से 1 कम हो गया, ये सिर्फ 1 हो गया, इसमें y नहीं था, इसका कोफिशिएंट 6 है, a 3x है, पावर 2 हो जाएगा, y का पावर 2 हो जाएगा, यहाँ 4 कोफिशिएंट था, 3x 1 हो जाएगा, 2y 3 हो जाएगा और यहाँ पावर 2। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए क्या होगा, ये देखो 3 इंटू 3 4 टाइम्स होगा, 3 क्या 9 और 9 से फिर करेंगे तो 981 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 81 x टू द पावर 4। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 4 2 जा 8, 8 इंटू 27 27 इंटू 8, बहुत सावधानी से सब करना है, 8 इंटू 3 3 9 या 27, 7 8 56 के 6 5 कैरी हुआ, 8 2 16 4 20 21 216, तो क्या लिखेंगे प्लस 216 और x का पावर कितना होगा 3 और y का पावर 1। अब यहाँ देखो इसमें क्या होगा प्लस, यहाँ क्या क्या है देखो, ये 3 3 9 9 चौक 36, ये 2 दूनी 4 और 4 9 36, अब 36 को यदि 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36 3 आएगा, 17 18 19 20 21, ये भी 216 है, तो यहाँ लिखेंगे 216 और x का पावर क्या है, x का पावर है 2 और y का पावर भी है 2, ये समझ में आया। अब देखो इसके बाद ये प्लस होना चाहिए था, प्लस और इसका वैल्यू होना चाहिए, तो प्लस आएगा, यहाँ देखो 3 दूनी 6 6 चौक 24 24, ठीक है, और 24 में
एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ एक्स वाई का क्यूब, देखो यहाँ वाई का क्यूब है और यहाँ 8 होना चाहिए था, ये रॉन्ग हो रहा है। 2 2 2 8, 8 किया 24, 24 इंटू 4, 4 या 12, 12 से 96, 4 चौके 16 के 6, हाथ में 1, 4 दुनिया 96 आ रहा है। तो यहाँ क्या देंगे, यहाँ देंगे 96। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 का क्यूब था, 3 4 से मल्टीप्लाई था, x था, y का पावर 3 है, प्लस 2 का पावर 4 टाइम्स कितना होगा, 2 इंटू 2 4 होता है, और 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। 4 बार दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16/4 मिला लीजिए। 81x4, 216 x क्यूब वाई, 216 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 96 x वाई क्यूब प्लस 16 y टू द पावर 4, और यही इसके एक्सपेंशन का आंसर है। स्टूडेंट, let us see question number 3. Expand 2x, here it is minus not plus, and 3y whole raised to the power 4. The difference of the earlier question is negative expansion. This is sign is negative, so take it is a and then minus b to the power n, and learn about this. A minus b to the power n will be in expansion NC0. Everything will be same. A to the power n. Not plus here. The first one is plus, another one will be negative. NC1 a to the power n minus 1 b to the power 1. Next will be NC2 a to the power n minus 2 b to the power 2, plus again minus NC3, these odd numbers 1 3 negative with sign, a to the power n minus 3 b to the power 3, and then plus NC4. Here expansion is 4. The value a will be cancelled, only b will remain, b to the power 4. Power n minus 1, n minus 2, n minus 3, 0. Opposite side 4, 3, 2, 1, 0. This is your formula. Now, as we have earlier learned that this value NC0 and NCn will be always 1. NC0 is equal to NCn is equal to 1. With this help, you can take this coefficient as 1, 1. And the next one, NC1 and NC3 will be the 4. So take it as a 4 and 4. For this value, we have just calculated NC2, it will be 6. Now, finally, 1 a to the power n. What is a here? 2x to the power 4, first term. Then minus sign, 4 as a coefficient, and a to the power 3. n is 4, 1 घट जाएगा तो 4 से 3 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2x to the power 3. बगल में इसका ना y आना चाहिए, तो क्या है y यहाँ 3y. फिर ये प्लस है, ये फर्स्ट प्लस है, माइनस है, तो यहाँ क्या होगा प्लस लिखना चाहिए. फिर ये ध्यान दोगे, इसका कोफिशिएंट 6 है, इंटू a के जगह पर 2x लिखो और पावर
3 के जगह पर 2 कर दो, 4 3 2। और b का पावर क्या होगा, 3y का, ये है b, और y का पावर 2 होगा। देखो यहाँ फिर ये प्लस हुआ है ना, तो अगला टर्म माइनस होगा, माइनस होगा, इसका कोफिशिएंट 4 होगा। और a के जगह पर 2x लिखो, और इसका पावर देखो अब क्या होगा, 4 3 2 1, कुछ होगा ही नहीं। लेकिन y का पावर इंटू 3y कैसे हो जाएगा, ये y देखो कैसे, इसमें 0 था, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ 3 होना चाहिए। समझ में आ रहा है। ये माइनस है तो अगला टर्म क्या होगा, प्लस होगा, प्लस होगा, और प्लस होगा तो ये होगा 1 कोफिशिएंट होगा। b के जगह पर है आपके पास 3y टू दी पावर 4। ये समझ में आया, एक बार चेक कर लो। a टू दी पावर n विथ कोफिशिएंट 1 माइनस 4 a टू दी पावर 3, 4 से 1 घट गया और बगल में y आया, फिर ये माइनस है, फिर प्लस आया, 6 कोफिशिएंट है, a टू दी पावर 1 घट जाएगा 2, और इसमें 2, फिर माइनस आएगा 4, और a और y का पावर 3, और यहाँ अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16, 16x टू दी पावर 4। यहाँ देखो क्या होगा, ये है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 या 24, 24 इंटू 4, 4 चौके 16 की 6, हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 96 क्या आएगा, माइनस 8 या 24, ओके। तो 96 यहाँ लिखेंगे 96, x का पावर हो जाएगा 3 और y, ये समझ में आया। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9 चौक 36, 36 इंटू 6 करो क्या आएगा, देखो 6 छः 36, 6 हाथ में 3, 6 18, 19 20 21, 216 आया। प्लस या माइनस, देखो माइनस हुआ है, प्लस माइनस तो प्लस ही होगा, 216 होगा। x का पावर क्या होगा, यहाँ देखो 3 है ना, तो x का पावर 2, और यहाँ 1 है तो ये बढ़ेगा, तो y स्क्वायर आना चाहिए। ये एक घट गया, ये एक बढ़ गया। अब ये प्लस वाला टर्म हो गया ना, तो अब ये माइनस वाला आएगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माइनस, इसका वैल्यू देखो क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या था, 8 और 27, 8 और 27 क्या है, 4 दूनी 8, ये 3 तिया 9, 3 तिया 27, तो 27 इंटू 8 कितना आएगा, 8 7 56, 6 5, 8 दूनी 16, 4 20 21, ये भी 216 आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 216, लेकिन नेगेटिव लिखेंगे। अब आपके पास एक्स पर पावर्स देखिए क्या है, यहाँ तो सिर्फ x है, यहाँ y 3 है, क्यों x है यहाँ पर, देखो 2 के बाद घटेगा तो x 1 हो जाएगा, और इधर से y 2 था तो y का पावर y 3 हो गया, ये सही है। प्लस प्लस ये माइनस के बाद फिर प्लस आएगा, 3 3 3, ये कितना बार है, 4 बार है, 2 बार 3 9, 9 9 जा 81, 3 तिया 9 और फिर 9 9 81, तो यहाँ क्या लिखेंगे 81 y टू दी पावर 4, और यही आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ ट्राई मेनी मोर फ्रॉम योर बुक्स।